Hello and welcome to this session. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Today, I'll be discussing about chemical reaction. What a chemical reaction is, how textbooks define this, and what do they mean by a chemical reaction, right? So there are various definitions that are taught at this level. Like, first definition is, it's the process in which, say, two or more than two substances react to form new substances. That's one of the definitions that's being taught. Another definition is a breaking of bonds, means old bonds are broken and new bonds are formed. New bonds formed. And third thing that's being taught is we cannot get the initial state back. That means irreversibility. Okay. Let's try to understand each one of these definitions that are being taught one by one. पहले तो जब हम केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करते हैं हम कहते हैं कि एक चेंज हो, समथिंग हैज चेंज्ड, राइट? अब वो चेंज फिजिकल चेंज भी हो सकती है एंड वो चेंज केमिकल चेंज भी हो सकती है. फिजिकल चेंज एज इन फॉर एग्जांपल आई हैव अ पीस ऑफ पेपर, एक पेपर है मेरे पास एंड आई एम टेयरिंग इट अपार्ट. मैंने इसको काट दिया, इसको मैंने बहुत सारे पीसेस कर दिए. It still is the same paper, although I have torn it apart into different pieces. It's a physical change. अभी भी ये पेपर ही है. But what if I burn this paper? अगर मैंने इस पेपर को जला दिया, it gets converted into ash, right? It has formed into something new. It's a chemical change. Another example, जिस तरह से हम घर में जो है सब्जी पकाते हैं, I am chopping off the vegetable. मैंने इसके टुकड़े कर दिए. It's still the same vegetable, right? It's a physical change. But what if I have made a recipe out of it? मैंने इसको cook किया. Now it has got converted into something different. See, it's a chemical change. So there's a concept like physical change and chemical change. Chemical reaction is definitely a change, but it's a chemical change. It's not a physical change. Firstly, it's a chemical change. Right? जिसमें हमें कुछ नया सबस्टेंस देखने को मिलता है. नंबर वन, क्या हर कोई चेंज कहलाएंगे केमिकल रिएक्शन? नो, एवरी केमिकल रिएक्शन इज अ केमिकल चेंज, बट नॉट एवरी चेंज इज अ केमिकल रिएक्शन. इट्स लाइक एवरी डॉग इज एन एनिमल, बट एवरी एनिमल इज नॉट अ डॉग. सो यहां पे कंफ्यूजन ना करिए कि कोई भी चेंज अगर हुई वो केमिकल रिएक्शन है. यू हैव टू अंडरस्टैंड वेदर इट इज केमिकल इन नेचर और नॉट. So हर कोई केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज है, बट नॉट एवरी चेंज इज अ केमिकल रिएक्शन, राइट? उसके बाद बोला जाता है कि जब दो सबस्टेंसेस रिएक्ट करेंगे कुछ नया सबस्टेंस हमें देखने को मिलता है. अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल आई विल बी टॉकिंग अबाउट आइस की मैं बात करूं. आइस, थोड़ा सा हीट हम इसको दे दें, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू से लिक्विड. इसको और हम बॉयल कर रहे हैं, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर्स. सो आइस गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, लिक्विड गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वेपर. नाउ टेल मी दिस कन्वर्शन, अब ये जो चेंज आपको देखने को मिल रहा है कि आइस किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में. और लिक्विड अगर हम और बॉयल कर रहे हैं इसको, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? वेपर में. Is it a physical change or a chemical change? What do you think? Is it a physical change or a chemical change? Very nice. It's a physical change. Why? It's a physical change. It's a physical change. Because it is still H2O. State different है, just state has changed. सिर्फ phase change हुआ है. अभी तो यहाँ पे solid state थी, ice के form में. यहाँ पे liquid state थी, obviously it is liquid. यहाँ पे gaseous state थी in the form of vapor.
right? So just state has changed, or we can say phase has changed. Just a phase has changed. When a state changes or a phase changes, we say it is still a physical change. It is still a physical change क्योंकि it still stays the same as H2O water. अभी भी ये पानी ही है, हालांकि phase different है. Liquid phase भी हो सकता है, solid phase भी हो सकता है, gaseous phase भी हो सकता है. तो जो ये हमारी definition है ना, breaking of bonds and forming new bonds means old bonds are being broken and new bonds are being formed. क्या इसमें bonds break नहीं हुए? Try to understand this. Very, very delicate, very fragile concept to take to the absolute level of comprehension. इसमें bonds break नहीं हुए? Of course, bonds are being broken. Which type of bonds? Hydrogen bonds. Which type of bonds? Hydrogen bonds. यहाँ पे hydrogen bonds break हो रहे हैं. जिस तरह से हमने लास्ट डिस्कशन में हमने पढ़ा था, हमने ये कहा था कि जिस तरह से हमने डिस्पर्शन फोर्सेस पढ़े, जिस तरह से हमने डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस पढ़े, we talked about intermolecular forces. यहाँ पे intermolecular force जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, it's an intermolecular force कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो इनको आपस में tightly bound रखता है, that is this hydrogen bond. And it is being broken when a state changes from solid to liquid, liquid to vapor. जब phase change हो जाता है, जब state change होती है कि जो ice है वो कन्वर्ट हुआ लिक्विड में, जो लिक्विड है वो कन्वर्ट हुआ वेपर में, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हुए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक हुए. तो इसका मतलब है ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स इट्स इनकम्प्लीट. हम कह सकते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर. इंट्रामॉलिक्यूलर मींस जिस तरह से मैंने लास्ट टाइम एक एग्जांपल दी, मैंने कहा HCl, ये जो इनके बीच में बॉन्ड है ना, इट इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड. इंट्रा. फिर अगर और एक HCl का मॉलिक्यूल होगा, इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दिस इज इंटर, इट इज बिटवीन मॉलिक्यूल्स. अगर intermolecular bonds break हो रहे हैं, that will still be a physical change. Remember this point, very important point. अगर यहाँ पे hydrogen bond break हुआ, वो क्या है? Intermolecular bond. If that is being broken, that's still a physical change. But if intramolecular bond, दो जो है atoms के बीच में जो bond है जो उनको connected रखता है, अगर वो break हुआ, we call that as intramolecular bond. तब वो chemical change शायद हो सकती है. ये दूसरा point. तीसरा point है इरिवर्सिबिलिटी का. हमारे अंदर दिमाग में ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि एनीथिंग दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, वी कैन नॉट गेट द इनिशियल स्टेट बैक. शायद वही केमिकल चेंज हो सकती है. जिस तरह से हमें पानी में अगर वेपर को और थोड़ा कंडेंस करें, लिक्विड को और शायद आइस बन सकता है, वापस आ सकती है रिएक्शन, वी कैन गेट द आइस बैक. इट्स अ फिजिकल चेंज. दैट्स वेयर वी डेवलप दैट कंफ्यूजन व्हिच इज रूल ऑफ इरिवर्सिबिलिटी. ये जरूरी नहीं है. व्हाट अबाउट दिस? हमारे पास NH4Cl, right, and it gets converted into say NH3 plus Hcl, right. Now it's a reversible reaction. We can get the ammonium chloride back. तो क्या ये chemical reaction नहीं है? It is a chemical reaction. कुछ नए substances हमें देखने को मिल रहे हैं. So ये irreversibility का जो शोषण डाला जा रहा है कि अगर हमें initial state वापस नहीं आई तो केमिकल चेंज है. अगर वापस इनिशियल स्टेट हमने एक्वायर की, ऑब्टेन की, तो फिजिकल चेंज है. इट्स नॉट ट्रू ऑलवेज. इट्स नॉट ट्रू कि यहां पे भी हम दे सकते हैं. इनफैक्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया हैवर्स प्रोसेस में दैट्स रिवर्सिबल. वी कैन गेट द इनिशियल स्टेट बैक जिस तरह से इक्विलिब्रियम में होता है. इसका मतलब ये है न ये डेफिनेशन कंप्लीट है, न ये डेफिनेशन कंप्लीट है, न ये डेफिनेशन कंप्लीट है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? दैट मींस ऑल द थ्री डेफिनेशंस दैट हैव रिटन दे आर नॉट कंप्लीट. दे सिंप्लीफाइड. कुछ और एडवांसमेंट लाने की जरूरत है. लेट्स फाइंड आउट हाउ. रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. दूसरे रूम में कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही है. वी मे बी गेटिंग दोस दैट इज हैपनिंग सम. सो रियली सॉरी फॉर दैट. Is it fun? Okay. फिर क्या है? हमने देखा स्टेट चेंज होते हुए, राइट, फेज चेंज होता है. जिस तरह से आइस कन्वर्ट हुआ लिक्विड में, लिक्विड कन्वर्ट हुआ वेपर में. हमने कहा ये फिजिकल चेंज है. कुछ रिएक्शंस में भी कलर चेंज होता है, टेम्परेचर चेंज भी आ सकता है. दे कैन स्टिल बी द फिजिकल चेंज. लेकिन बल किस पे है? देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ एम्फेसिस?
जो सारा जोर जो है ना वो किस पे है? दैट इज आइडेंटिटी, दैट इज आइडेंटिटी. द एंटायर फोकस इज ऑन आइडेंटिटी. जो सबस्टेंसेस मिल रहे हैं, अगर उनकी आइडेंटिटी कंप्लीटली चेंज हुई और जो हमें प्रोडक्ट, जो स्पीशीज हमें मिल रही है, उसकी आइडेंटिटी कंप्लीटली चेंज हुई, हम कहते हैं कि a chemical change is occurred, it's a chemical reaction. So the entire emphasis is on identity. Entire emphasis. Right? For example, we have HCl plus water. Okay. And it's giving what? It is giving obviously positive. बैलेंस को कर लीजिए. ठीक. सो जब हमने HCl को पानी में डाला, there are two reactions I will write here. Analyze. It is giving ZnCl2 plus H2. Okay. These two reactions. मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया, एक बीकर लिया, उसमें मैंने पानी ऐड किया. आई फिल द बीकर विथ वाटर. ये पानी इज H2. अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूं HCl along the walls of this container, drop by drop. एंड मुझे क्या मिल रहा है? हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोरीन आयन, chloride ion, right? That means HCl ceases to be HCl1, ये कुछ और बना. H2 ceases to be H2, ये कुछ और बना. मुझे नई स्पीशीज देखने को मिल रही है, one Cl नेगेटिव, one H2 पॉजिटिव. That means इन दोनों की आइडेंटिटी कंप्लीटली चेंज हुई. I'm getting something different. The identity has changed. Similarly, जब मैंने zinc को या HCl डाला इसमें zinc में, I have got ZnCl2 plus H2. ये जो H2 है, मैंने एरो अपवर्ड्स लिखा, इज एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस. इट मींस Zn ceases to be Zn. अभी Zn नहीं रहा. HCl ceases to be HCl. अभी HCl नहीं रहा. इट इज ZnCl2 plus H2. ये मुझे डिस्कस करना है. यहां पे जब भी आप लैब में ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज बेसिकली, क्योंकि दो सब्सटेंसेस या दो स्पीशीज को हमने मिलाना. हमारे पास HCl है और हमारे पास वाटर है. वन पॉसिबिलिटी ये है कि मैं पानी को HCl में डालूं. अनदर पॉसिबिलिटी इज कि मैं HCl को ही वाटर में डालूं. सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज लाइक दिस. अगर ये HCl मैंने लिया, अब मैं इसमें पानी डालूंगा. ये दो पॉसिबिलिटीज आप ध्यान में रख लीजिए. ये दो पॉसिबिलिटीज, दिस इज वन पॉसिबिलिटी, दिस इज अनदर पॉसिबिलिटी. लेकिन हमें पता है कि दिस इज अ सेफ प्रोसीजर, कि अगर मैं HCl ही डालूं इसमें, पानी में, आई एम एडिंग एसिड टू वाटर, आई एम नॉट एडिंग वाटर टू एसिड. व्हाई? क्या केमिस्ट्री चेंज होगी? केमिस्ट्री को कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता whether you are adding H2 to HCl or HCl to H2. Point is energy control. Point is what? Let me try to define this. हमें पता है वाटर में हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है. इट हैज हायर हीट कैपेसिटी वाटर. अब जब मैंने HCl ड्रॉप बाय ड्रॉप डाला, ये जो एनर्जी है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी एंड इट विल नॉट बी स्प्लैशिंग दिस ग्लास, क्योंकि इसको क्षमता है, इसके पास कैपेसिटी ज्यादा है हीट को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करने की वाटर में. बट इफ वी डू द अदर वे राउंड, अगर मैंने वाटर को एसिड में डाला, इट विल बी सो एक्सप्लोसिव दैट इट कैन स्प्लैश द बीकर और द ग्लास. ठीक. तो थर्मोडायनेमिक्स रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए मेरी दो चीजें होती है. वन इज थर्मोडायनेमिक्स, कि रिएक्शन तो होनी ही होनी है. यू आर मिक्सिंग H2 and HCl, you are getting H3O positive plus Cl negative. That's the chemistry. But there is another one main important factor, that's kinetics. The kinetics of the reaction says that आपको HCl जो है एसिड को ही ऐड करना है पानी में. You are concerned about the rate of the reaction.
If you are doing otherwise, you are adding water to acid, it can be so explosive, it is so exothermic, itni energy release hogi abruptly that it may splash the glass. Are you getting my point or not? It is like बहुत गर्म पानी है, बहुत ज्यादा extreme hot, sizzling hot. अब यही पानी जो है दो पॉसिबिलिटीज में आप टब में डाल रहे हैं, बहुत ज्यादा जगह है, ठीक है, that's fine, it's just an analogy I'm trying, तो ठीक है. That's one of the scenarios. Another scenario is you are adding that extremely hot water on your hand. उससे तो आपका हाथ जलेगा, उससे आपका हाथ जलेगा. Similarly, it is like अगर आप इसे को पानी में डाल रहे हैं, it's like putting that hot water into tub. Energy uniformly distribute होगी. It won't be explosive. But if you are adding water to acid, it is like dropping extremely hot water on your hand. Another example, जिस तरह से हम कहते हैं कि गाड़ी में जो है फ्यूल बर्न होता है. अगर इंजन में फ्यूल बर्न होता है, that's fine, but if you are burning that fuel on your hand, it is dangerous. So safety procedure के लिए we are doing this. We are adding acid to water. Fine. Okay, ये तो समझ में आ गया. जब हमने इसकी बात की, when we talked about this, हमने ये कहा कि नए substances हमें देखने को मिल रहे हैं. We are getting something new substances. We are getting hydronium ion plus chloride. इसका मतलब है कि इसकी आइडेंटिटी चेंज होगी, जो सबस्टेंसेस है इनकी आइडेंटिटी चेंज होगी, एंड वी हैव गॉट distinct or peculiar chemical species, new chemical species. That's a chemical reaction. अब आपने याद क्या रखा? हमने ये याद रखा कि अगर सबस्टेंसेस आपस में मिल रहे हैं, अभी मैं एडवांस डेफिनेशन पे नहीं आ रहा हूं, मैं इसको बिल्ड कर रहा हूं अभी. अगर सबस्टेंसेस मिल रहे हैं and the new substances that we are getting, अगर उनकी आइडेंटिटी completely change हुई, that will be a chemical reaction. It is like अगर आप में से कोई स्टूडेंट है, फॉर एग्जाम्पल आज आपने ये कपड़े पहन लिए, कल आप नए कपड़े पहन रहे हो और you have this sort of hairstyle, tomorrow you change your hairstyle, it will be a physical change, casually. But what if you undergo a biological transformation? That's a chemical change. Is an analogy. अब अगर बायोलॉजिस्ट ये ना कहें मुझसे नहीं ये तो बायोलॉजिकल चेंज है, मैं कंपैरिजन ड्रा कर कि कंप्लीटली आप ये ट्रांसफॉर्म हो गया, यू हैव कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म. या ऐसे आप जो 5 साल पहले आप जो इंसान थे, you were very afraid of certain things, you were emotionally immature, you were not emotionally grown up, लेकिन आज जो है you are completely mature, you have worked on yourself, you have transformed yourself. Today you are something new, you are not the same person that you were before 3 or 4 years. आप में ये चेंज आ गया, आपने अपने आप को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म किया, आपकी आइडेंटिटी चेंज हुई, आपकी पर्सनालिटी चेंज हुई. मैं कह सकता हूं कि ये केमिकल चेंज है. अदरवाइज इफ यू आर पुटिंग न्यू क्लोथ्स एवरी डे, इट्स लाइक कैजुअल, और यू आर चेंजिंग योर हेयर स्टाइल एवरी डे, इट्स कैजुअल. इट्स अ फिजिकल चेंज, इट्स नॉट अ केमिकल चेंज, राइट? सो यहां पे जब हम बात करते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द एनर्जी कंट्रोल, how you are controlling the energy. Here in this scenario, energy is controlled in a better way, in the precise way, which is not controlled or which is unlikely in case of this if we are adding water to it. Right. This is one of the fine examples of this. तो उसके बाद इंशाल्लाह, I think it's getting longer, हम देखेंगे in the next lecture, we'll get to see कि इसकी definition क्या है, हम इसको थोड़ा सा और explain करेंगे, Zinc 2, and we'll be able to see how we proceed, how we carry this discussion forward, and इसके related जितने भी आपके questions होंगे, don't be hesitant, don't be reluctant in asking any damn question to me. I'll see you in the next session inshallah. Till then, take care. Allah Hafiz. All the best.